Good morning, students. Welcome to our maths class. As you know, we are discussing our chapter number 14. The name of the chapter is Factorizations. If the students is not see my previous lecture, so I request to all of you that please go through the first lecture because there is a fundamental explanation of this chapter. So today we are going to start our next method. The name of the method is regrouping terms. By using this method, we factorize our algebraic expression. So, what we do in this method? So, let's take an example and understand how can we solve the problem by using the method of regrouping terms. Correct? The question is given like this. There is a question is given 6x minus 4y plus 6 minus 9x. We have to factorize this algebraic expression by using regrouping method. Correct? So what are the steps? So I request to all of you first understood what are the steps to use this method. The first step number 1. Step number 1 is that you have to write all the factors of each terms. Correct? When the question is given, you have to write all the factors of each term. Now second step is check if there is a common factor between the terms or not. Then step number 3, think of grouping. And how can you think about we will discuss. Now step number 4 is again regrouping the terms. Correct? So these are the 4 steps to solve the regrouping terms by using these methods. So now solve this problem 6x minus 4y plus 6 minus 9x by the following steps. So according to step number 1, what we have to do, you have to write factors of all the terms. So here we have 4 terms, 6xy, 4y, 6 and 9x. So I am going to write factors of each term. Correct? The factors of 6xy. So that is 2 multiply 3 multiply x multiply y. Put the negative sign. Next 4y. The factors of 4y is 2 multiply y. That in next is plus factors of 6 2 multiply 3. Next is minus sign the factors of 9x, that is 3 multiply x. Correct? Next, now step number 2, see any common factor between the terms. Correct? Second step क्या था आपका? Taking a common factor between the terms. So first I am taking these 2 terms and the common factor is 2 y. Yes or no? तो I make a group of these 2 terms. Yes or no? ऐसे ही यहाँ पे देखिए making a this 2 group, that is common is 3 and 3. Yes or no? तो this called grouping. हमें इस तरह से grouping करना है जिसमें से क्या हो भी आपका common factor निकल सके. So in the next step we have to write about these 2 terms. Correct? Which is the common factors? 2 and y. So I have written here 2 and y. Now make a bracket and write remaining terms. तो remaining terms कौन से बाकी है? 3x. So I have written here 3x. Put the negative sign like this. And what is the remaining term here? 2 and y is common. The remaining term is 2. So I have written 2. Plus common term is 3 and 3. So I have written here 3. Take a bracket. Which is the remaining part? 2 minus sign and remaining part is 3x. Understand? Close the bracket. So you have to write like this. Now in the next step, see here the group of 3x minus 2 and group of यहाँ पे क्या है 3x minus 2 and here is 2 minus 3x. मतलब क्या है यहाँ पे जो हमने नंबर लिखे है वो क्या है आगे पीछे है, तो हम डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते. तो व्हाट वी डू, वी टेक अ माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट. तो माइनस साइन मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो क्या हो जाएंगे
ये जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। करेक्ट, तो व्हाट वी गेट 3x minus 2. Okay, so now you can see here 3x minus 2 and 3x minus 2 is common. Correct, तो वो लिख दिया मैंने. Now remaining part is 2y and minus 3. तो this is the factor of 6x minus 4y plus 6 minus 9x. Correct, तो this is called grouping. देखो यहाँ में हमने दो बार ग्रुप किया क्रिएट. फर्स्ट कॉमन फैक्टर का ग्रुप किया कॉमन, फिर कॉमन फैक्टर का एज अ ग्रुप को मैंने कॉमन ले लिया एंड दूसरा ग्रुप बन गया. दैट्स वाई हमने दो बार ग्रुप क्रिएट किए. दैट्स वाई दिस नोन एज अ रीग्रुपिंग मेथड, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कॉमन फैक्टर का ग्रुप है उसको कॉमन ले रहे हैं एंड जो कॉमन फैक्टर बन रहा है उसका भी एक ग्रुप बन रहा है. ठीक है, मतलब पहले कॉमन फैक्टर निकालो, उसका ग्रुप बनेगा, फिर जो कॉमन फैक्टर का ग्रुप बना वो भी क्या निकल जाएगा, पूरे टर्म में से कॉमन. तो यहाँ पे दो बार ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं और इसको कॉमन ले रहे हैं. दैट्स वाई दिस मेथड इज नोन एज अ रीग्रुपिंग मेथड. करेक्ट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रीग्रुपिंग मेथड. अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 14.1. Exercise number 14.1, question number 3 that is remaining from this exercise 14.1. मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है, तो वो होमवर्क आप लोगों को जो स्कूल की ऐप है, ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको पहले सॉल्व करना है जो भी मैंने होमवर्क दिया है वो. उसके बाद उसको स्कैन करके उसके ऊपर एप्लीकेशन में आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक होमवर्क अपलोड नहीं किया है, तो प्लीज़ अपलोड योर होमवर्क सो आई कैन अंडरस्टैंड कि विद दिस स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू योर होमवर्क परफेक्टली. करेक्ट, जो मुझे पता लगेगा कि भी आप लोग होमवर्क अच्छे से कर रहे हो. करेक्ट, सो उसमें मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे. आई होप सो कि यू आर अंडरस्टैंड दोज सम्स. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 14.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. करेक्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है x² प्लस x इंटू वाई प्लस 8x प्लस 8y. सो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फैक्टर्स ऑफ ऑल द स्टेप्स, ऑल द टर्म्स. तो x का x² का क्या होगा, x मल्टीप्लाई x प्लस x इंटू वाई का फैक्टर होता है x मल्टीप्लाई वाई प्लस 8 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x एंड प्लस 8 का फिर से क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस multiply by y bracket complete. So our first step is done here. Now what is second step? Second step क्या करना है आपको, take a common from these terms. तो here देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स का मैंने ग्रुप क्रिएट किया जहाँ से क्या कर रहा है, x एंड x कॉमन आ रहा है. और यहाँ पे देखो मैंने ये दो टर्म्स का मैंने ग्रुप किया जहाँ से क्या हो रहा है, 8 एंड 8 क्या निकल रहा है, कॉमन. तो चलिए कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट फैक्टर्स को. तो यहाँ से x कॉमन निकला, तो विच आर द रिमेनिंग पार्ट, x पुट प्लस साइन y प्लस फ्रॉम दिस टू टर्म्स 8 इज कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स आर x प्लस y. नाउ सी हियर x प्लस y एंड x प्लस y अगेन कॉमन, तो वी राइट x प्लस y and the remaining terms from this x and here plus 8. Correct, the factors of this x² plus x into y plus 8x plus 8y is equal to x plus y into x plus 8. अंडरस्टैंड, जो मैंने स्टेप्स पहले प्रीवियस समझाए थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, 15x इंटू वाई माइनस 6x प्लस 5 इंटू वाई माइनस
2. करेक्ट. नाउ फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका? यू हैव टू राइट all the factors of each term. So we are going to write the factors of each term. That is, the first term is 15xy. The factor of 15xy is 3 multiply 5 multiply x multiply y, minus factors of 6x is 2 multiply 3 multiply x, plus factors of 5y is 5 multiply y, and factors of 2 is 2. Now first step is clear. Now second term. Second step क्या करना है आपको? Make a group of terms. There is something common factor. तो see here, there is 3 and 3 is common. X and x is common. So I make a group of these two terms. There is nothing common between these two. So I have write as it is. Correct? Next. The common factor is 3x. Now remaining term is 5y minus 2 plus, in between two terms there is no common factor, so I am taking one as a common factor, 5y minus 2. Yes or no? Yes. Now see here, 5y minus 2 and 5y minus 2 again common, so I have written 5y minus 2 as a common, and 3x plus 1 is remaining. So the factors of 15 minus x plus 5y minus 2 is 5y minus 2 into 3x plus 2. This is the solution of question number 2. So you can solve the same steps to solve the again question number 3, 4 and 5. So in your homework you have to solve this question number 3, 4, 5. Correct? I hope you understand this concept. Correct? चलिए, now move on the next topic. Now next method is factorization using identities. Now हमें क्या करना है यहाँ पे? factorization करना है by using identities. So recall all the identities which is you already learnt in your previous standards. The first identity is a plus b whole raised to 2 is equal to a square plus 2ab plus b square. Second one is a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. And next and last is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Correct? पहले क्या करते थे हम लोग? एक्सपांड करते थे. तो क्या होता था? a प्लस बी होल टू 2 ऐसा हमें क्वेश्चन गिवन था. अब हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा गिवन होगा? विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड द फैक्टर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज लाइक दिस. करेक्ट? तो आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया जाएगा एंड उसके फैक्टर्स क्या होंगे आपके? ये सारे. करेक्ट? अंडरस्टैंड अभी नहीं आएगा, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि भाई सर हम लोग आइडेंटिटी के ऊपर से फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं. करेक्ट? तो उसके लिए आपका जो भी नेक्स्ट आ रहा है वो क्या है आपका नेक्स्ट? जो एग्जाम्पल नंबर 4 से 8 है विच इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, दैट इज़ फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज. करेक्ट? तो लेट स्टार्ट द एग्जाम्पल नंबर 4. Example number 4. Question is that x square plus 8x plus 16. So see students here, x square and 16 both are perfect square. Yes or no? तो चलो is equal to, तो एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स का, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो बोलेंगे 4 का. करेक्ट? तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो हमारा मिडिल टर्म है वो क्या होना चाहिए? 2 मल्टीप्लाई ए बी. सो हियर अवर ए एंड हियर अवर बी. करेक्ट? तो प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू 4. करेक्ट? तो चेक करो, जो हमने ये लिखा ये क्या सेम 8x के इक्वल आता है? तो देखो 4 2 ज़ा 8
मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो मिल गया हमें मिडिल टर्म 8x। तो मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 होल रेज़्ड टू 2 लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। यस और नो? करेक्ट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक कि योर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, एंड उसका रूट निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, ये आपको चेक करना है। करेक्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे वो आइडेंटिटी का आंसर। अंडरस्टैंड? चलिए मूव करते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5 दैट इज 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। करेक्ट। नाउ फर्स्ट हमें क्या करना था, हमें चेक करना था कि भाई हमारे फर्स्ट टर्म एंड जो लास्ट टर्म है वो कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये है ही 4y स्क्वायर, इट मीन्स ये किसके परफेक्ट स्क्वायर है, 2y स्क्वायर के, प्लस 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो मैंने लिख दिया। ना अभी मुझे क्या चाहिए, मिडिल टर्म 12y चाहिए, तो मेरा ये क्या हो गया, a, ये हो गया b। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखो, 2y इंटू 3, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड पुट माइनस साइन। तो अभी चेक करो इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या 12y आता है, लेट्स चेक इट। 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12 इंटू वाई। इट मीन्स जो मैंने ये लिखा उससे क्या होता है, मुझे में मिडिल टर्म मिल रहा है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी हो गई आपकी, a माइनस बी होल इज टू 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा हो गया। तो मतलब ये मेरा क्या है, गिवन क्वेश्चन, तो उसका आंसर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मतलब ये जो मेरा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 का फैक्टर्स क्या होंगे, 2y माइनस 3 का स्क्वायर। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, 49 p स्क्वायर माइनस 36। करेक्ट। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है एंड बीच में किसकी साइन है, माइनस की। तो उसके लिए हमने एक थ्योरम पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यस और नो? करेक्ट। चलो निकालते हैं। चलो 49p स्क्वायर किसका है, वो 7p का स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो हो गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। यस और नो? ये क्या हो गया, a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, b का स्क्वायर हो गया। तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स 7p प्लस 6 इंटू 7p माइनस 6। दिस इज़ योर फैक्टर्स। यस और नो? करेक्ट। तो ये था मेरा एग्जाम्पल नंबर 6। करेक्ट। चलो मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जब यहाँ पे देखो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 1 2 एंड 3 है। करेक्ट। तो यहाँ पे जब ऐसे 3 परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आए ना, इन योर क्वेश्चन इफ यू गेट 3 परफेक्ट स्क्वायर, सो यू हैव टू रिमेंबर कि दैट भाई यहाँ पे क्या होंगे, आपकी 2 आइडेंटिटी का यूज होगा। पहली तो कौन सी होगी, a प्लस बी होल इज टू 2 और
ए माइनस बी होल इज टू 2, ये फर्स्ट एप्लीकेबल हो सकती है। एंड दूसरी कंपलसरी आपकी ये होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो जब आपके पास क्या हो 3 परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं तब आपको यही लॉजिक अप्लाई करना है, करेक्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई ये और ये में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। एंड ये कंफर्म करने के बाद सेकेंड स्टेप में कंपलसरी हम लोग यही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, माइनस सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह हो गया ये। तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर एक बार प्लस एक बार माइनस, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो आइडेंटिटी का एक साथ यूज किया, करेक्ट। यस और नो? करेक्ट, ओके गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि भाई जब हम क्या हो रहे हैं, हमारे पास 3 परफेक्ट स्क्वायर एक ही क्वेश्चन में आ रहे हैं, तब हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करेक्ट। चलिए मूव ऑन द एग्जांपल नंबर 8। m raised to 4 minus 256, करेक्ट। नाउ देखो फिर से दो टर्म आ गए, बीच में माइनस की साइन है, मतलब क्या है यहाँ पे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। तो m raised to 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, इस स्टेप को देखो, यहाँ पे फिर से बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो इट मीन्स वी हैव टू राइट m रेज़ टू 2 माइनस 4 स्क्वायर, और ये एज इट इज m स्क्वायर प्लस 60, करेक्ट। तो उसका आंसर क्या आएगा, m प्लस 4 इंटू m माइनस 4, और ये लास्ट टर्म तो एज इट इज ही रहेगा, करेक्ट। तो इट मीन्स जब आपकी पावर 4 आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, उसको यूज़ 2 टाइम्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पहले मैंने ये स्टेप के लिए यूज़ किया ये प्रॉपर्टी, करेक्ट। उसके बाद फिर से ये स्टेप के लिए ये प्रॉपर्टी मैंने यूज़ करी, करेक्ट। तो जब पावर कितनी आ रही है 4, तब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी 2 टाइम्स यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए सो ये थे आपके पूरे के पूरे एग्जाम्पल नंबर 4 to 8। अब जैसे आपने ये एग्जाम्पल नंबर 4 to 8 सॉल्व किए हैं, उसके बेस्ड ही, करेक्ट, हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 14.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, करेक्ट। तो उसमें से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज नंबर 14.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ओहो। अब मैं इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करूँ, मेरे पास आई हैव अ लॉट्स ऑफ आइडेंटिटीज। तो यू चेक हियर स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट स्टेप एंड लास्ट इज परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट, यस और नो। तो ऐसा जब आता है तब हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, अदरवाइज a माइनस बी रेज़ टू होल रेज़ टू 2 वाली, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस 16 यानी क्या, ये 4 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ a एंड 4 उसका मल्टीप्लीकेशन लिखूँगा, एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ पे जो साइन लिखी है वो लिख दूंगा मैं। तो चेक करो, 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई ये 8a, मतलब मुझे मिडिल टर्म मिल गया, करेक्ट। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स व्हाट इज़ अवर a इज़ a प्लस व्हाट इज़ b, अवर 4 होल रेज़ टू 2,
करेक्ट। तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 का फैक्टर क्या निकला आपका, a प्लस 4 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो फिर से ये और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, a प्लस बी होल इज टू 2 और a माइनस बी होल इज टू 2. We can apply for this question. So first of all you have to write first 121 is a square of 11, b square is equal to b, it means 11b ka square plus this is a perfect square of 4c square. Now what we have to do, you have to write multiplication of these numbers and multiply by 2 and see if we get a middle term, so we can apply the property or we can say identity, correct. तो minus 2 multiply 11b multiply 4c, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सॉरी परफेक्टली विजिबल नहीं है, इट इज 11b, करेक्ट। तो 11 मल्टीप्लाई 2 22 मल्टीप्लाई 4 28 और 88 एंड b मल्टीप्लाई c, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है, मिडिल टर्म हो रहा है। सो वी कैन हियर राइट 11b माइनस 4c होल इज टू 2। क्यों मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा, बिकॉज आपका मिडिल टर्म कैसा है, माइनस, करेक्ट। अगर मिडिल टर्म प्लस होता तो यहाँ पे क्या लिखता मैं, प्लस। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 1 का 7 क्या है भाई, l प्लस एम होल इज टू 2 माइनस 41m। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ये तो परफेक्ट स्क्वायर है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स मुझे ये पहले ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपांड। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एल स्क्वायर प्लस 2lb प्लस एम स्क्वायर माइनस 41m, करेक्ट। चलो वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके यहाँ पे 41 नहीं है, एक्चुअली ये एल है, मेरी मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट। दिस आर द लाइक टर्म्स, करेक्ट। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, एल स्क्वायर, अब ये है +2, ये है -4, तो क्या होगा माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। तो इसकी ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे l माइनस एम का होल स्क्वायर, करेक्ट। क्योंकि क्या है, ये किसका स्क्वायर होता है, l का स्क्वायर होता है l, m का स्क्वायर होता है m, 2 से करो मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 12m, इट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ दिस स्टेप एक्सपांशन। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का 7। ओके, सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट करना है, इसी मेथड का है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। एंड उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, क्या है वो, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स रिकॉल करो, देखो आ गया फिर से, दिस आर द टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड माइनस साइन। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या आएगा उसका आंसर, a प्लस बी इंटू a माइनस b। ओके, यस और नो, तो दिस इज योर आंसर, बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। चलो सेम क्वेश्चन फिर से लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 का 5th नंबर, क्या है 5th नंबर, l प्लस एम होल इज टू 2 माइनस l माइनस एम होल इज टू 2। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर है, करेक्ट, यस और नो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ x, तो मैं क्या करूँगा x स्क्वायर, इसको मैं एज्यूम करता हूँ y, तो y स्क्वायर। तो क्या आएगा उसका आंसर, x प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई। नाउ क्या करेंगे हम लोग, एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स को मैंने क्या एज्यूम किया था, एल प्लस एम, प्लस वाई को क्या एज्यूम किया था, एल माइनस एम। यहाँ पे क्या आएगा, एन प्लस एन माइनस एल प्लस एम। देखो माइनस एम प्लस एन कैंसल, माइनस एल प्लस एल कैंसल, तो विच इज़ द रिमेनिंग टर्म, यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस एल 2l multiply m plus m 2m. This is your answer. Correct? Yes or no? Sure. Good. Now move on the next sum. That is question number 2, 8. The question is 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square. Oh, this is looks like example number 8. See here, there are 3 perfect square numbers. Yes or no? So what we do in this type of sums, we have to use 2 identities, which are, which one? First is a plus b whole square or a minus b. Then you must have to use a square minus b square. Yes or no? Correct. So let's look at which properties is used. चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वी हैव टू 25a स्क्वायर, नाउ कॉमन माइनस साइन, 4b स्क्वायर प्लस 28bc प्लस 49c स्क्वायर. You have a doubt, sir, कि how can you think that कि sir we have to take minus sign from this bracket common? So see here there is a BC. It means middle term is multiply of first term and last term. Correct? So I can take a minus sign as a common because we have to see that कि in your identities last term always positive, लेकिन यहाँ पे नहीं था. Correct? Okay. Now it is a perfect square of 5a square and then this one is perfect square of 2b plus 7c whole square. Now ये क्या हो गया, a square minus b square, that means a plus b into a minus b. Correct? So this is your answer. Question number 2 का 8. Now next question number 3, उसका 4th, am square plus bm square plus bn square plus an square. करेक्ट. यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो व्हाट वी डू, राइट अ फैक्टर्स ऑफ दिस एंड सी द कॉमन फैक्टर. तो देखो यहाँ पे ये अगर मैं 2 ब्रैकेट लेता हूँ तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है आपका, एम स्क्वायर. तो आई टेक एज अ कॉमन, द रिमेनिंग पार्ट इज ए प्लस बी. सेम ईयर एन स्क्वायर इज कॉमन, रिमेनिंग पार्ट इज ए प्लस बी. Now a plus b common, so a plus b and the remaining part is m square plus n square. फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, you don't use a square minus b square term identities, correct, because we have a sign here plus, so we cannot use this property. Correct? So this is your final answer. Okay, so students you have to solve on this way like other terms. Correct? So write down the homework. So in homework you have to complete exercise 14.1 question number 3.
and also complete exercise 14.2 question 1 to 4 in your notebook. Okay, so I hope you enjoy your lecture and understand the factorization methods which will be discussed today, correct? Thank you.